A very good afternoon to all our students who have joined us on DSU's first National Startup Day. We welcome all of you today to this webinar session where we're going to celebrate the themes behind being a startup. We have interesting bunch of speakers lined for you, and we hope you enjoy those sessions. Just in terms of some facts, I thought which is always interesting to share. India has the third largest startup ecosystem today after US and China. In fact, as per the DPIIT, which is India's leading data sourcing platform for startups, we have about 84,000 plus startups that are registered on the platform, which I think says a lot. There are 5 states as of today which are accounting for bulk of the startups, which is Maharashtra, Karnataka, Delhi, UP, and Gujarat. What's fascinating is that Delhi, being a union territory, is high up in terms of the number of startups it has. Delhi has about 9,000 odd startups as of today, whereas Maharashtra is leading with about 15,000 startups, which is given, which is I think a tremendous number. Just tells us about the ecosystem that exists here in Delhi and the amazing and enterprising entrepreneurs who are here. Another I think interesting statistic is that India has about 108 unicorns as of today. 44 of these were set up, became unicorns in the year 2021, and 21 became in the year 2022. Interesting terms to know are gazelles and cheetahs. A gazelle is a startup that is expected to turn a unicorn in 2 years, and a cheetah is expected to become a unicorn in the next 4 years. So, as per another statistic, we have about 51 gazelles and 71 cheetahs. So, I think we have lots to look forward to in our in India in terms of the startup space. So, with that, I'd like to welcome Professor Rehan Khansuri. Sir, we would really appreciate it if you could share some words with our students today, and then we'll move on to Mr. Nalin Savara, our first speaker for the day. Thank you. Thank you very much, Ambika. Today's speaker, Mr. Nalin Savara, Ms. Ambika, other DICE members, students, budding entrepreneurs, and the future of the country. Very good afternoon to all of you. It is indeed my pleasure and privilege to be part of DSU's first event on National Startup Day. And this is also India's first National Startup Day. I remember when I was in college, almost in 1990, I also attended one entrepreneurship development program that was organized by National Small Industries Corporation for 2 days. Since then, whenever I participate, I interact with any entrepreneur or any entrepreneurial program or any such kind of activity, always that program comes to my mind, and it gives me another feel of the importance of such kind of programs which is going to be held today. When you are meeting people like Nalin, who is also from Delhi, again from Delhi College, NSUT, an engineer working in the technology-based startup, and he has proved a good kind of, again, the kind of, the interest area of most of the youth today, that is in gaming. And he's running a successful startup. So when you meet such kind of people, when you understand how they have become successful, that gives an inspiration, and that also guide you in terms of how to do that. One thing I would like to say, never give up like me. Otherwise, you will become an employee of some company. You should work on your idea. Whenever you think anything, I'll just, if you just permit me, Ambika, to speak in Hindi, because it's also a national day. तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं हिंदी में बात करूं, और हिंदी में आप थोड़ा सा दिल की बात ज्यादा दिल से करते हैं.
और दिल दिल तक पहुंच भी पाते हैं। एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा क्योंकि नलिन जी की बातें बहुत अच्छी होंगी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगी, खास तौर से आप बच्चों के लिए आपने रजिस्टर भी किया, इनका नाम सुन के ये गपशप है, तो गपशप तो हमेशा इनफॉर्मल होनी चाहिए, अंग्रेजी में आप फॉर्मल हो जाते हैं थोड़ा सा। सो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों, अगर आपने ये सोचा, कुछ भी आपने ये सोचा कि मैं ये बन सकता हूँ, या आपने ये देखा कि नलिन जी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मैं सोचता हूँ, मैं भी ऐसा सोच सकता हूँ, या आपने सोचा कोई भी ऐसा जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है, या आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता है, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैंने एनएसयूटी से इंजीनियरिंग नहीं की, या मैंने आईआईटी से कोई प्रोग्राम नहीं किया, या मैंने आईआईएम अहमदाबाद से अंबिका की जगह की तरह कोई एमबीए नहीं किया। इससे कुछ नहीं होता। सिर्फ आप में काम करने की चाहत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, और एक जो सबसे अहम चीज़ है वो है नेवर गिव अप अप्रोच। किसी भी हालत में, किन्हीं भी हालात में, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई चीज़ शुरू करें और आपको बहुत स्मूथ राइड मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमेशा एक अप्स एंड डाउन्स की जर्नी होती है एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए ये कहना कि उसने कर लिया मैं नहीं कर सकता, या मैं कैसे करूं, इसको नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, आपके पास जो अच्छा सॉल्यूशन है किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का, वो टेक्नोलॉजिकल हो, वो जनरल हो, या इवन कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगती हो कि ये एक बहुत बड़ी किसी मास की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो आपके पास राइट आइडिया। आपको सिर्फ समझना है इस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए अंबिका जी बैठी हैं, डाइस डीएसयू का एक जो इंक्यूबेशन और इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर है, वो आपकी मदद करने के लिए बैठा है। नलिन जी जैसे मेंटोर्स आपके पास मौजूद हैं। तो इससे अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान हाईएस्ट रेट पर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में आगे बढ़ रहा है। सेम एज विद यूनिकॉर्न्स की अगर हम बात करें, तो मुझे तो आज पता चला कि गजल और चीता जो है वो मैंने तो जूम ही देखे थे, वैसे कभी वहाँ तो देखे नहीं, लेकिन अभी यहाँ हम स्टार्टअप के लाइन में भी देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो सपोर्ट करने में लगे। तो इससे अच्छा टाइम नहीं मिल सकता। मुझे इसलिए मैं बात कह रहा था कि मैं 30 साल पहले की दिन याद आती कि काश आज वाला एनवायरनमेंट अगर जब होता तो मैं भी शायद यूनिकॉर्न होता। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप अपना कोई भी मौका जाने ना दें। आप कोई आपके पास आइडिया है, आप उसको फौरन इम्प्लीमेंट करें, खूब मेहनत से काम करें। और देखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। छोटे रास्ते ना ढूंढें, शॉर्टकट्स ना ढूंढें, मेहनत करें, कोशिश करें। और हमेशा एक बात दिमाग में रखें कि आपका आइडिया इस सोसाइटी को कैसे सर्व करेगा, आपका ये आइडिया नेशन को कैसे सर्व करेगा। जाहिर है वो आपको तो सर्व करेगा ही, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में नेशन रहना चाहिए, नेशन फर्स्ट, और सोसाइटी रहनी चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे तो आप अपने आप कामयाब हो जाएंगे। आपका स्टार्टअप को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ उस पैशन की ज़रूरत है, जद्दोजहद की ज़रूरत है, और कभी भी हारने, कहते हैं ना, हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आप अपना प्लान चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन इस जर्नी को कभी भी छोड़ के, घबरा के कोई और काम ना करना शुरू करें। और हमेशा मेंटर्स के टच में रहें, कोशिश करें। आज जैसा इन्वायरमेंट, आज जैसा इकोसिस्टम, आज जैसा हिंदुस्तान में जितनी स्कीमें हैं खासतौर से स्टार्टअप को लेकर, मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी इतनी अच्छी स्कीमें रही होंगी। ये आपको हमेशा मदद करेगा। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ नलिन सवारा जी का कि उन्होंने अपना समय निकाला, और अंबिका का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आप सबको नेशनल स्टार्टअप डे की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for sharing some important lessons. I like the one on never give up, and I think DSU students should hopefully embrace that and become successful entrepreneurs. With this, then, I'd like to turn over to Mr. Nalin Savara. एक छोटा सा introduction उनके बारे में. As sir had said, उन्होंने BE किया है computer engineering में from NSUT. उसके बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ काम किया था 2 साल के लिए, एंड देन ही वर्क फॉर अनदर गेमिंग इंजन टेक कंपनी फॉर अनदर ईयर. आई थिंक दैट्स वेयर सर फाउंड हिज पैशन फॉर गेमिंग. एंड 2002 में उन्होंने अपनी ओन कंपनी लॉन्च करी थी, डार्क सन टेक. ही इज अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हु हैज कम अप विद मेनी अवार्ड विनिंग गेम्स. उनके 20 million plus डाउनलोड्स हो चुके हैं. सो वी आर वेरी proud to have him here with us today. And
वी आर होपिंग कि सर के एंटरप्रेन्योरियल जर्नी से हम सब कुछ सीख पाएंगे. सो ओवर टू मिस्टर नलिन नाउ. थैंक यू. Hey people, it's really nice to be here, and it's amazing to see India is celebrating its National Startup Day today. I remember in 2016, I was watching on TV the live stream of Prime Minister Modi ji and various entrepreneurs from across the world in the launch of Startup India, and it's just great. मैं ये जो टॉक है, पहले मैं सोच रहा था कि मैं किस प्रकार अपनी कहानी बताऊं, पर फिर मैंने सोचा कि ये मेरी कहानी के बारे में नहीं, बल्कि आप लोगों के बारे में है, आप जो दर्शक हैं, जो मुझे सुन रहे हैं. और मैंने सोचा कि अपनी कहानी चाहे मैं बताऊं या अपनी कहानी के कुछ किस्से बताऊं, ये उससे ज्यादा ये जरूरी है कि मैं आप तक कुछ चीजें लाऊं जो मैंने अपने सफर में सीखी, और ऐसी सीखें साझा करूं आप सभी के साथ, जिनसे जो आप सभी के लिए लाभदायक हो, आप सभी को कुछ प्रेरणा मिले, या आप सभी को कुछ आइडियाज आपके दिल में जागरूक हो. सो इसलिए मैं शुरू करता हूँ. मैं NSIT से 1999 में पास आउट किया था, और उस साल में भारत पाकिस्तान का करगिल युद्ध चल रहा था. हमारे सभी के दिलों में एक मतलब देशभक्ति, देश प्रेम की आग थी, और उस वक्त मोबाइल रेवोल्यूशन नहीं था. दुनिया ऐसी थी कि अगर किसी को पता करना है कि ये वाला कॉलेज अच्छा है या बुरा, तो उसको अपने जानकारों से पता करना पड़ेगा. पूछेगा कि कोई मेरे रिश्तेदारों में है जिसको इसके बारे में पता है, कोई मेरे यार दोस्तों में है जो इसके बारे में बता सकता है, कोई बड़े बुजुर्गों में है. तो उस जमाने के कई साल बाद इंटरनेट बिल्कुल भारी तरह से फैला, मोबाइल्स सबके हाथ में आए, और आज जो भारत है वो उस भारत से बहुत अलग है जिस भारत में मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की थी, और जिस भारत में मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी. और जैसे कि खान साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आज के दिन जो आप लोगों के पास मौके हैं, जो चीजें आप कर सकते हो, भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा वक्त ना था कि इतने सारे लोगों के पास इतनी सारी चीजें करने की क्षमता हो, और इस किस्म की टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो. सो मैं शुरू करता हूँ. मैंने अपनी कंपनी 2002 में शुरू की थी, और 2002 से लेके 2012 तक हमारा एक स्ट्रगल टाइम था कि हम बस ये सोचते थे कि किस प्रकार हम महीने का गुजारा करें. अगर किसी की तनख्वाहें देनी होती थी तो हम सोचते थे कि क्या हम अगले महीने की तनख्वाहें दे पाएंगे या नहीं. हमने कई किस्म के प्रोजेक्ट किए, छोटे बड़े, और पर फिर भी जिसको कहते हो कि एक हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस थी. 2012 में हमने कई प्रोडक्ट्स बनाए, इंटरनेट प्रोडक्ट्स. उनमें गेमें थी हमारी, पर उसके साथ साथ कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी थे, और नोकिया के ज़माना था, और कुछ ही महीनों में हमारे मिलियन डाउनलोड्स आए, कुछ ही और महीनों में हमारे 5 मिलियन डाउनलोड्स आए. और एक दिन ऐसा आया कि मैं बैंक गया और सोच रहा था कि मेरे बैंक अकाउंट में 10, 12, 13 हज़ार रुपये होंगे कुछ, और कुछ मैंने चेक दिया कि इस चेक की जगह कैश दे दो मुझको. और कैश लेने के बाद मैंने पर्ची पे देखा कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, और मैं अचंभित हो गया क्योंकि अभी भी एक और कई जीरोस थे उसके सामने. और फिर मुझे अचानक एहसास हुआ कि बैंक अकाउंट में हकीकत में 10,000 के आसपास नहीं बल्कि 10 लाख रुपए आ गए थे पिछले 2 या 2.5 महीनों में, क्योंकि हमारी गेम हिट थी, उसमें हम एड्स दिखा रहे थे, और इतनी जल्दी इतने सारे डाउनलोड्स और इतने सारे एड इम्प्रेशंस और पैसे. और फिर मुझे लगा 2012 सितंबर या अक्टूबर के आसपास कि अब अपनी स्टार्टअप के सफर में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम फील कर सकते हैं कि हम थोड़ी हम कामयाबी चख रहे हैं. और उसके बाद काफी अप्स एंड डाउन्स आए. अभी भी हम काफी हद तक स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी अपने सफर की, हम सोचते थे कि भारत को ही नहीं बल्कि दिल्ली को दुनिया के नक्शे में लाएंगे, और लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, और कोई देखेगा और कहेगा कि ये प्रोडक्ट दिल्ली में बना है. जिस प्रकार आज से कई साल पहले एक गेम होती थी एंग्री बर्ड्स, तो एंग्री बर्ड गेम फिनलैंड की बनी थी, और शायद उस गेम के कारण पहली बार फिनलैंड और फिनलैंड के एक शहर हेलसिंकी का नाम पहली बार सुर्खियों में आया था.
सो हम भी ऐसी इरादे, ऐसी हसरतें लेके अपना स्टार्टअप शुरू करने चले थे, और 2012 में हमने पहली बार एक बड़ी कामयाबी देखी। और उसके बाद हम कई चीजें कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया है, क्योंकि हम अभी भी एक बहुत छोटी कंपनी है। पर हम छोटे हैं अपनी चॉइस के कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट बनाना है तो फोकस बहुत जरूरी है। और मैं सॉफ्टवेयर की फील्ड का आदमी हूँ। सॉफ्टवेयर की फील्ड से संबंधित काफी काफी कुछ बोल सकता हूँ, काफी कुछ जानता हूँ। कई किताबों में भी मैं सह लेखक रह चुका हूँ। पर क्योंकि ये टॉक आप लोगों के लिए है, जो कि स्टूडेंट्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हो, इसलिए मैं कुछ उदाहरण साझा करूंगा आप लोगों के साथ, और कुछ सबक जो उन उदाहरणों से सीख सकते हैं, या कुछ सबक जो कि मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए अपनी स्टार्टअप जर्नी में कामदायक रहेंगे। सो सबसे पहले मैं एक इंग्लिश में लाइन है, बायस फॉर एक्शन और रिफ्यूजल टू स्टॉप, कि आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो और रुको ना। ऐसा ऐसा हो सकता है कि कोई लकीर का फकीर किस्म का आदमी कहे कि अरे भैया, आप सोच के तो चले थे ये, अब आप ये क्या कर रहे हो, अब आप ये क्या कर रहे हो, अब आप ये क्या कर रहे हो। पर वक्त का पहिया सिर्फ एक दिशा में चलता है और सिर्फ आगे बढ़ता है। वक्त के पहियों को कोई उल्टा नहीं घुमा सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ कुछ ट्राई करते रहो, कुछ कुछ सीखते रहो, कुछ कुछ जानते रहो। और इसमें मैं कुछ और चीजें आपको बोलूंगा कि हिंदी में एक कहावत है, या एक लोकोक्ति है, पूछने में कोई हर्ज नहीं। तो अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो आप सीखने की कोशिश करो। आपको काफी बार ऐसा लगेगा कि आप एक चट्टान के या एक दीवार के सामने खड़े हो और आपका आगे रास्ता जाम है। पर हकीकत में ये होता है कि अगर आप सवाल पूछें, अगर आप, और सवाल हमेशा सिर्फ किसी गुरु, किसी मेंटर, किसी इंसान से ही नहीं पूछते, बल्कि सवाल पूछने का मतलब कि आप रिसर्च करो, आप जानकारी पाने और प्राप्त करने की कोशिश करो। और कुछ भी काम असंभव नहीं है, कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है। सब कुछ आप कर सकते हो। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आप एक बार उस पथ पे चलने लगे तो आपको एहसास होगा कि इसमें जहां आपने सोचा था कि 2 महीने लगेंगे, वहां पे 2 साल या 20 साल भी लग सकते हैं। पर उसके बाद फिर ये आपका फैसला है, आपका निर्णय है कि आप किस हद तक उस पथ पे आगे चलना चाहते हैं, और किस हद तक आप उस पथ के इर्द गिर्द और दिशाएं ढूंढते हो, या और जल्दी पाने वाले लक्ष्य आपको मिलते हैं, जिसके द्वारा आप जल्दी अपने पथ पे कुछ और कहीं और कामयाबी ढूंढ सको। दूसरी बात है कि एक कहावत है, बात करने से ही बात बनती है। सो अगर आपकी एक सोच है, अगर आपका कोई आइडिया है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस आइडिया को दुनिया में ट्राई करें। ये जरूरी नहीं है कि आप दुनिया के सामने जाके उस पूरे आइडिया को किसी के कानों पे बोलो, या आप किसी को भाषण में बताओ। पर ये बहुत जरूरी है कि आप मार्केट में जाओ, मार्केट में बात करो, मार्केट से पूछो कि मार्केट को क्या चाहिए, आपके हो सके जो ग्राहक हैं उनको क्या चाहिए, और आप किस तरीके से उस आइडिया को मतलब हकीकत में बदल सकते हो। अ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि अरे भाई, जो मैंने बात सोची है, ये काम तो अभी तो सर्दी का मौसम है, ये काम तो सिर्फ गर्मी में शुरू हो सकता है। और फिर वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं या कुछ और करते हैं। सो हर दिन, हर हर घंटा, हर हर मिनट, हर हर पल आपके लिए ग्रो करने का, कुछ सीखने का मौका हो सकता है, और आपको हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात पे मैं आपको ये भी कहूंगा कि इंग्लिश में एक कहावत है, दैट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मैन हु डज नॉट रीड एंड द मैन हु कैन नॉट रीड। सो अगर आप पढ़ सकते हो, चाहे आप बहुत सिंपल लेवल की भी किताबें पढ़ सकते हो, पर आप पढ़ते नहीं हो, तो आप में और किसी ऐसे इंसान में जिसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, कोई फर्क नहीं है। सो हमेशा आप कुछ पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए, कुछ करते रहिए, और उससे हमेशा 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 आप किसी ना किसी दिशा में तो आगे बढ़ेंगे। और आपको लगेगा कि इसमें स्टार्टअप से संबंधित क्या है, या इसमें क्या महान बात है। पर हकीकत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेल कर जाते हैं, जो अपने आइडियाज या अपनी चीज से गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि वो मुद्दे की गहराई में कभी घुस ना पाए।
और मुद्दे की गहराई में इसलिए नहीं घुस पाए क्योंकि किसी ने उनके सामने आके उनके मुंह में ज्ञान के निवाले नहीं डाले, जिनसे जिनसे उनके आइडियाज फायर अप हों या जो उनके दिमाग में बीज की तरह बने नए आइडियाज के लिए। तो आप जब तक एक्सप्लोर कर रहे हो, जब तक आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, आप हमेशा आगे बढ़ रहे हो। ये मत सोचिए कि सिर्फ जो आपने सोचा है आपका अंतिम लक्ष्य, उसकी तरफ डायरेक्ट दौड़ने से ही आप आगे बढ़ रहे हो, बल्कि काफी कुछ आप कर सकते हो अपने आप को बनाने, सुधारने, बढ़ाने के लिए, जिसके द्वारा आप कुछ सीख सकते हो, कुछ कर सकते हो और अपने लक्ष्य से ज्यादा करीब आ सकते हो। दूसरी बात ये है जो मैं आपके सामने रखूंगा कि कस्टमर्स फर्स्ट। एक कहावत है जो कि कुछ लोग कहते हैं गांधी जी ने कही और कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने नहीं कही, बट जिसमें मैं बहुत भरोसा रखता हूं वो है द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कि जो ग्राहक है वो अपनी जगह हमेशा सही है, इसलिए क्योंकि हर एक इंसान वही करेगा जो उसको सही लगता है। तो अगर आपकी किसी मार्केट पे नजर है, कोई ग्राहक वर्ग है जिसको आप अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, तो आपको दुनिया अपने नजरिए से नहीं बल्कि अपने ग्राहक वर्ग और अपने ग्राहकों की दृष्टिकोण से देखनी पड़ेगी कि आपका ग्राहक क्या चाहता है, उसकी दुनिया में क्या परेशानियां हैं और वो क्या करना चाहता है। और चाहे आप किसी को लाख बार कह दो कि भाई तुम्हारा दुनिया देखने का नजरिया गलत है, हम तो ऐसे देखते हैं, हम तो ये सप्लाई करेंगे, पर इंसान अपनी दर्द, अपनी जरूरत और अपनी हसरतों के मुताबिक वही करता है जो उसको सही लगता है। इसलिए बहुत 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 जरूरी है कि आप अपने ग्राहक वर्ग को समझें और उसके मुताबिक, उसकी भाषा में उससे बात करें, उसके मुताबिक उनके तरीके की सर्विसेज उनको डिलीवर करें और उनको खुश करें। उदाहरण के तौर पे आपने जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा होगा शायद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा काम करती हैं गूगल शीट्स भी, जो कि आप अगर गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट्स, गूगल ड्राइव इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखे होंगे, जिसपे बिजनेस की कैलकुलेशंस करने के लिए काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट, काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। पर शायद काफी लोगों को ये नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पहले भी एक स्प्रेडशीट थी आईबीएम द्वारा बनाई गई, लोटस 123। और लोटस 123 जो था वो आईबीएम के एक्विजिशन से पहले एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी। पर वो कंपनी इसलिए डूबी, इसलिए आईबीएम को बिकी, क्योंकि वो सोचते थे कि स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होती है और इसलिए कैलकुलेशंस को फास्ट करना सबसे जरूरी बात है। पर जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बना रहा था, तो जो बंदा उस एक्सेल बनाने वाले एफर्ट को लीड कर रहा था, तो उसने जाके ग्राहकों से बात की, बहुत सारे ग्राहकों से बात की। उसको एहसास हुआ कि हालांकि 10% ग्राहक आपके अकाउंटेंट लोग हैं, कंपनियां हैं जो कि अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल करती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों, दफ्तरों, दुकानों में इस्तेमाल करते हैं। और उनसे जब पूछा कि आप क्या करते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, तो उसको पता चला कि लोग तो इससे लिस्ट बनाते हैं। आपके 90% ग्राहक जो थे उस सॉफ्टवेयर के, वो लिस्ट बनाते हैं उससे। और अगर 10 काम करने हैं तो वो लिखेंगे, अगर 10 चीजें खरीदनी है तो उसमें लिखेंगे, अगर किसी इवेंट में 10 लोग आए हैं या बुलाने हैं तो उस स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करके लिखेंगे। सो उस पॉइंट पे जो अगला वर्जन निकला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, उसमें बहुत सारी ऐसे फंक्शंस और फीचर्स थे जो कि लिस्ट मैनेजमेंट, लिस्ट सॉर्टिंग और लिस्ट्स में डेटा सर्च और ऑर्गेनाइज करने के लिए कामदायक, लाभदायक थे। जबकि जो जो लोटस 123 था, जो कि अल्टीमेटली कंपनी आईबीएम को बिक गई, उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए बहुत सारा और काम किया। पर उन्होंने कभी ग्राहकों से नहीं पूछा कि आप क्या करते हो इससे, नहीं तो उनको पता चलता कि 90% या 95% काम जो उससे होता है वो कैलकुलेशंस का नहीं होता, बल्कि लिस्ट्स बनाने और लिस्ट मैनेज करने का होता है। उसी प्रकार एक कहानी है कि
किस प्रकार जब गूगल नया था सर्च इंजन, तो गूगल के का प्रतियोगी एक था जो गूगल के साथ प्रतियोगिता में था, याहू। आज के दिन याहू को हम सर्च इंजन के रूप में सोचते ही नहीं, पर याहू जो था वो सर्च इंजन से ज्यादा न्यूज पोर्टल बनना चाहता था। जिस प्रकार गूगल में आप क्लिक करते हैं और गूगल न्यूज देख सकते हैं, उस प्रकार याहू ने अपने होम पेज जहाँ पे उनका सर्च होता है वहां पे सारी न्यूज भर दी और बहुत सारी ऑप्शंस दिए कि आप किस प्रकार डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी खबरें आपको दिखेंगी। और जब गूगल आया, जिसका होम पेज बिल्कुल ब्लैंक था, सिर्फ एक सर्च का डिब्बा था जिसमें आप सर्च वर्ड टाइप करो और गूगल कर लो, तो झट से लोग गूगल की तरफ आकर्षित हो गए। गूगल ने और भी काफी कुछ किया अपनी सर्च टेक्नोलॉजी को अच्छा करने के लिए, एड्स दिखाने के लिए इत्यादि। पर गूगल की सबसे बड़ी खासियत जब वो मार्केट में नया नया उतरा था, वो यही थी कि वो सिर्फ सर्च पे फोकस्ड था और सर्च को ही सुधारे, सर्च को ही अच्छा बनाए और एडवर्टाइजमेंट भी दिखाए। तो आप गूगल पे अगर ऐड देखेंगे तो लिखा होता है ऐड, ये आपको पता चलता है कि ये एडवर्टाइजमेंट है और ये सर्च रिजल्ट है। गूगल की खूबी, गूगल की खासियत यही थी कि जिस प्रकार कई न्यूज चैनल पैसे लेके न्यूज दिखाते हैं, उसी प्रकार उस जमाने में सर्च इंजन भी पैसे लेके सर्च रिजल्ट दिखाते। पर गूगल की खूबी थी कि कोई उनको जितने भी पैसे ऑफर कर ले, उनका उनके सर्च रिजल्ट्स बिकाऊ नहीं थे। और आज तक उनकी ये खूबी है, वो एड्स दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बेचते हैं, पर जहां भी एक एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन होता है वहां पे लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट। सो बस आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो फोकस होता है, जो कस्टमर ओरिएंटेडनेस होती है, जो ग्राहक को खुश करने वाली बात होती है, वो एक कंपनी को बहुत 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 दूर ले जाती है। आपको एक आखिरी उदाहरण दूंगा इसका, क्योंकि मेरी राय में ग्राहक पे फोकस्ड होना सबसे सबसे महत्वपूर्ण काम है किसी भी बिजनेस का, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे पुराना बिजनेस हो। अगर बिजनेस अपने ग्राहकों से नाता संपर्क तोड़ बैठे या खो बैठे वो नाता जो ग्राहक के साथ उसका रहता है, तो आप कहो कि उस वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा धंधा। चाहे वो कोई सड़क के किनारे भुट्टा बेचने वाली या मोमो बेचने वाली दुकान हो, चाहे वो की किराने की दुकान हो, चाहे वो हार्डवेयर की शॉप हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे वो इंटरनेट प्रोडक्ट हो। सो ये सबसे जरूरी चीज है कि आप हमेशा मार्केट से पूछो, मार्केट को समझने की कोशिश करो, उस दुनिया में कदम रखो जहां पे आप कदम नहीं भी रख सकते, पढ़ पढ़ के उसके बारे में सीख के, उसके बारे में रिसर्च करके। पर हमेशा आप ये समझने की कोशिश करो कि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं और जो कस्टमर को चाहिए उसी तरीके से आप काम करो। तीसरी चीज मैं आपको बोलूंगा कि लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि कम्युनिकेशन से भी इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट, यानी कि कस्टमर का या सबका भरोसा और एतबार। अगर लोग आपके धंधे पे, आप पे एतबार ना करें, तो क्यों वो आपकी बात सुनेंगे? अगर कोई आप पे भरोसा नहीं करता या आपको पसंद नहीं करता और आप उससे कुछ सवाल पूछो, तो क्यों वो आपके सवाल का ईमानदार जवाब देगा? इसका ये मतलब नहीं कि आप हर एक के सामने झुको और हर एक को खुश करने की कोशिश करो, पर इसका ये मतलब जरूरी है कि अ, अ, चाहे आप अपने एम्प्लॉइज से डील कर रहे हो या टीम मेंबर से डील कर रहे हो, चाहे आप अपने लिए काम करने वालों से डील कर रहे हो, चाहे आप अपने ग्राहकों से डील कर रहे हो, कोशिश करो कि हर एक का भरोसा कमाओ, हर एक की नजरों में इज्जत कमाओ और हर एक अ, को समझने और सीधे मुंह जवाब देने की कोशिश करो। पुरानी फिल्में हम देखते हैं जहाँ पे कोई बहुत 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 बड़ा आदमी होता है जो कहता है कि अरे, इस जैसे हमारे पास लाख लोग आते हैं, इसको क्या जवाब दें। पर ये जो सोच है ना राजाओं वाली, या वो सोच बिजनेस की दुनिया में नहीं चलती, बल्कि बिजनेस की दुनिया में विनम्रता और ग्राहक को सेंटर में रखने और ग्राहक के इर्द गिर्द सब कुछ करने वाली सोच ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ग्राहक के साथ बातचीत से भी ये जरूरी है कि ग्राहक आप पे भरोसा करे और आप आपको बिलीव करे। तीसरी बात मैं आपको ये कहूंगा कि आप समझें
कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। अब लक्ष्य का सिर्फ ये मतलब नहीं कि अर्जुन से सीखो और सिर्फ मछली की आंख पे नजर रखो, पर लक्ष्य का ये भी मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, तो और आप एक काम में बहुत अच्छे हो और एक कंपनी आपको रिवॉर्ड कर रही है और आप उस काम में चमक सकते हो, पर आपके ऊपर मान लो कोई प्रेशर है कि आप जाओ बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, या आप आपको लगता है कि अरे ये सब लोग धन बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अब मेरे ऊपर मुझे भी, तो कभी भी आप इस मुझे भी या भेड़चाल वाली सोच में मत पड़िए, बल्कि आप खुद खुद के लिए समझने की कोशिश करिए कि आप क्या चाहते हैं, किन चीजों में अच्छे हैं और आपको क्या फीडबैक मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं इंजीनियरिंग में घुसने से पहले मैंने 1 साल ड्रॉप किया था और मैं किसी कॉलेज से बीएससी कर रहा था 1 साल और फिर इंजीनियरिंग में घुसा। तो इंजीनियरिंग में आने के बाद मेरी बहुत मंशा थी कि मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करूं और क्विजिंग में पार्टिसिपेट करूं। तो क्विज़ेस में मैं पार्टिसिपेट करता था, डिबेट्स में भी कुछ हद तक मैंने पार्टिसिपेट किया अपने फाइनल ईयर में। और एक 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 डिबेट था जहाँ पे मैं अच्छा बोला पर कोई और जीता। और मैंने फिर उस प्रोफेसर साहब से पूछा, उस कॉलेज के, एक दिल्ली के बहुत ही नामी कॉलेज के फेस्टिवल में था ये डिबेट, कि सर मैं क्या, आप क्या लगता है कि मैं कैसे ज्यादा सुधर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा जितनी तूने बातें कही, तूने 5 बातें कही और हर एक बात तूने सॉलिड कही, पर आप समझो बेटा कि जो डिबेटिंग होती है वो एक, उसमें एक सोच होती है, उसमें एक तरीका होता है जिससे डिबेट जीता जाता है। और जो बच्चे डिबेट जीतते हैं वो बहसबाज बच्चे होते हैं जो 1 या 2 पॉइंट बनाते हैं और उस पॉइंट को आगे तक पुश करते हैं, इसके बजाय कि 5 अलग अलग पहलुओं से एक मैटर को देखें। मैंने कहा, तो सर आप क्या सुझाव है कि क्या मैं अपना बात कहने का तरीका बदलूं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि डिबेटिंग आप उन लोगों पे छोड़ दो जो एमबीए करना चाहते हैं, जो आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। आपको अपने लिए आप एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे पास जॉब थी, मुझे ठीक से ये भी मालूम नहीं था कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। सो मैंने कहा, सर इसका क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि बेटे आप किसी दिन, चाहे आज नहीं, चाहे बहुत साल बाद, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अगर आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में 1 या 2 मुद्दे उठा के बहस करने की क्षमता नहीं जीतती, बल्कि एक मुद्दे के 5 पहलू या 8 पहलू या जितने भी पहलू हैं, समझने, देखने और कहने की क्षमता जीतती है। तो उससे पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं कुछ शुरू करूंगा, और ऐसा नहीं है कि उनके एक कहने से ही मेरा दृष्टिकोण बदल गया। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि क्योंकि मैंने लोगों से बात की, मैंने कुछ देखा, सीखा, जाना, तो मुझे एहसास हुआ कि हालांकि एक स्पीच या डिबेट में एक तरीके से बात कहने का तरीका कामयाब रहता है, पर और भी राह हैं, और भी दिशाएं हैं। और और कई साल बाद जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, कुछ कंपनी वंपनी स्टार्ट की, और मैंने देखे लोग जो किसी मुद्दे के 1 या 2 पहलू पकड़ के उन पे इतनी जोर शोर से बात करते हैं कि अगला हट जाए उनके सामने से और चुप हो जाए। तो मुझे इन प्रोफेसर साहब की बात याद आई और मैंने सोचा कि अ, भगवान का शुक्र है कि मैं गया और मैंने अपनी दुनिया देखने की कोशिश की और मैंने कुछ जाना। उसी प्रकार आप लोग, आप सभी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हो। आप में से कुछ लोग हैं जो बिजनेस फैमिली से हो, कि कह लो आपकी फादर की शॉप है या कोई बिजनेस है। कुछ लोग हो जो सर्विस फैमिली से हो, कि आपके पिता, आपके माता पिता कहीं पे जॉब करते हैं। उनको लगता है कि बेटा आप ये करो, आपको भी लगता है कि देखो कितनी सारी किस्म की स्टार्टअप निकल रही हैं, मैं भी कुछ शुरू करूं, और कोई आप पे रोक नहीं है कुछ शुरू करने से। पर ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी दुनिया को देखो, परखो और चीजें करो और लोगों का फीडबैक लो, और फिर खुद से पूछो कि आप, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, और आप में क्या क्या करने की क्षमता है, और उन क्षमताओं के मुताबिक और अपने सपनों को साकार बनाने की कोशिश करो।
सोचो कि आप क्या चाहते हो जिंदगी में, और उस चीज की बेसिस पे आप कुछ करो। काफी लोग हैं जो कहते हैं कि अरे हम तो ये चाहते हैं, पर ये तो सब कुछ सब लोग चाहते हैं और सब लोगों को मिल भी जाता है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचने समझने की क्या जरूरत है। पर मैं आपको अपने तजुर्बे की आधार पे यही राय दूंगा कि अपने आप को समझो, दुनिया को समझो, और दुनिया में कुछ करने की कोशिश करो, और हमेशा कुछ करते रहो। बस यही मेरा सुझाव है। और जय भारत, जय हिंद। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो बहुत खुशी से मैं जवाब दूंगा। इंग्लिश में भी पूछ सकते हो, हिंदी में भी पूछ सकते हो, चाहो तो सॉफ्टवेयर फील्ड से संबंधित बिल्कुल टेक्निकल सवाल भी पूछ सकते हो, और हर सवाल का मैं जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा अपनी जानकारी के मुताबिक। Thank you, Nalin. We're just looking through the YouTube comments to see what questions students are throwing up. But in the meantime, thank you very much. I thought they were very important lessons. Keep experimenting, customers first, build trust, and identify your goals. I hope I got that right. Absolutely. Okay. So thank you. Let me begin by asking you a question, which is, um, ki, one thing we didn't talk about, I know you did say कि how did you identify कि आपको किस market में अपना product establish करना था? Like how did you zone in कि gaming is the industry you want to be in? Like what brought you here? Because I'm guessing passion is one of the most important things an entrepreneur has. So how did you identify कि gaming ही आपका area of interest, expertise सब कुछ है? तो जब मैं स्कूल में था, स्कूल मतलब विद्यालय में था, कॉलेज में नहीं, तो मैं बचपन से ही देखता था कि लोग कुछ कर रहे हैं, पढ़ता था कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर के बारे में, और मुझे बहुत शौक था कि मैं कंप्यूटर्स में बहुत शातिर और बहुत सॉलिड हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में था हमारे ज़माने में, उस प्रकार मैं चमकूँ उस फील्ड में। और मैं प्रोग्रामिंग बहुत गहराई से सीखता था बचपन से। और जब मैं 12वीं कक्षा में था, 11वीं 12वीं कक्षा में था, तो एक कंपनी थी जो ठेका लेके हमारे स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन देती थी, और उस कंपनी के एक फाउंडर थे। हालाँकि एक थोड़ा वृद्ध आदमी था जिसने पैसे डाले थे उस कंपनी के पीछे, पर 4 या 5 यंग लोग थे उस ज़माने में जिनकी उम्र लगभग 30 साल थी, जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे थे, और जो कई बार जब उनको टीचर नहीं मिलता था 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए, आके हमें पढ़ाते थे। तो जब मैं कॉलेज इंजीनियरिंग में घुसा, तो यही हमारे सर ने मुझसे कहा कि नलिन, मुझे एक इन्वेस्टर मिला है और मैंने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की है जो कि गेम बना रही है, और वो गेम भी बना रही है इंडियन मिथोलॉजी पे, एक ओपन टेरेन गेम, कि कमरे में बंद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कर्म भूमि है जिसके ऊपर आप एक योद्धा और एक साधु बन के धनुष बाण से अलग अलग किस्म के सुरों, असुरों, राक्षसों से लड़ोगे। और हम चाहते हैं कि आप भी आओ और हेल्प करो उस बंदे की जो प्रोग्रामर है, कि आप दोनों इकट्ठे उस गेम इंजन की टेक्नोलॉजी बनाओ। तो Nice. मैं अपने कॉलेज में के 3 साल लगभग पार्ट टाइम इनके साथ कुछ कुछ करता रहा, और फिर कॉलेज से पास आउट होने के 2 साल बाद मैं जॉब कर रहा था, और इनसे मुझे कॉल आई कि भाई, जो कंपनी थी जिसमें तुमने काम किया था, जो गेम बना रहे थे, वो करोड़ों की बिक गई है, और आप चाहो तो आप भी आओ, ज्वाइन करो, और आप भी कुछ कर सकते हो। और अगर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं दैट इफ इट्स योर बेबी दैट्स गोइंग टू बी $1 मिलियन बेबी, देन हु बेटर देन यू टू ब्रिंग इट टू मार्केट। तो मैंने फिर अपनी जॉब चेंज की थी, बेंगलोर में काम करता था, दिल्ली आया, उस पेरेंट कंपनी के साथ जिसने इनकी कंपनी खरीदी थी और जो इनकी कंपनी में पैसे डाल रही थी गेम बनाने के लिए, काम किया। 6-7 महीनों में मुझे उस टेक्नोलॉजी टीम का हेड बनाया गया। मैं प्रोग्रामर था, प्रोग्रामर्स की एक टीम थी, और उस वक्त आप कह सकते हैं कि मेरे पास लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस था, इस कंपनी वाला एक्सपीरियंस मिला के, और मैं प्रोग्रामिंग टीम का हेड था। और उसके बाद किसी पॉइंट पे ऐसा हुआ कि वो कंपनी जो थी, जो पेरेंट कंपनी थी, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फार्म इक्विपमेंट और व्हीकल से रिलेटेड कंपनी थी। तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि सॉफ्टवेयर कंपनी कैसे चलाई जाए, क्या कल्चर होना चाहिए सॉफ्टवेयर कंपनी का, कि अगर कोई आदमी रात के 2-2 बजे तक काम कर रहा है, तो उसके ऊपर भी तुम अगर ऐसे नियम लगाओगे कि सब लोग 9:30 बजे तक अपना रजिस्टर साइन करें, और जो 9:30 के बाद आए उसके आधे दिन की तनख्वाह कटेगी। और मैं टीम हेड कर रहा था, और जो लोग थे वो सब
बाद में आते और अपने दोस्तों को कहते कि तुम जल्दी आओगे तो मेरी जगह साइन कर दो। और मैं सोचता कि मैं इस टीम को हेड कर रहा हूँ, अगर मैं लोगों से ऐसा कराने लगूं तो कितना बुरा होगा। पर राइट। उनका एक अपना तरीका था, अपना कल्चर था। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपनी जिंदगी का काफी वक्त इस काम में लगाया है तो कहीं ये ना हो कि खींचातानी में जो चीजें मैंने खड़ी की हैं वो टूट जाएं, लोग छोड़ दें कंपनी और ये प्रोडक्ट भी मर जाए। सो मैंने सोचा कि मैं मतलब कुछ हद तक उस वक्त भी स्टार्टअप का थोड़ा थोड़ा जुनून शुरू सा था। मैंने सोचा कि अगर मैं इस जॉब से हट जाऊं पहले कि ये कंपनी टूटे, और हो सकता है मैं नई जॉब ले लूं, हो सकता है मेरे पिता बिजनेसमैन थे उनके साथ कुछ काम कर लूं, हो सकता है मैं एक कंपनी शुरू कर लूं। तो उस सोच के साथ मैंने वो कंपनी छोड़ी। और उसके बाद जैसे कदम से कदम बढ़ाते गए और कुछ कुछ हमने भी शुरू किया और कुछ कुछ किया हमने। तो ये है कहानी। और क्योंकि मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट भी था और कई साल से मैंने उसमें कुछ काम भी किया है, टेक्नोलॉजी भी बिल्ड की है जो कि मेरी बनाई चीज की बेसिस पे करोड़ों की बिकी है। तो मुझे एक आइडिया था कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ और इसमें मेरे पास कुछ एक्सपर्टीज है। Very nice, very nice. In any entrepreneur's journey, there's always ups and downs. Is there एक कोई आप ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जहाँ you felt कि I'm going to give up and not do this anymore, and what made you stay on the path? Because we also interact with student teams, and and life of an entrepreneur is difficult. It's energetic and energizing, but it is difficult. So did you ever have any moments ki no, I don't want to do this, or I mean anything around those lines बिल्कुल। that you ever thought about? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपका बहुत शुक्रिया अंबिका जी कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं बचपन में गेम खेलता था, टीवी गेम खेलता था, और उसमें एक गेम थी जो हमें अच्छी लगती थी और उसके जैसी हम गेम बना रहे थे। और हम 2.5 साल से उस गेम पे काम कर रहे थे। कह लीजिए मिड 2008 से लेके 2011 तक। और जब तक हमने वो गेम खत्म की, वो उस जमाने के नोकिया सिम्बियन और नोकिया के जावा वाले प्लेटफॉर्म के लिए थी। और उस जमाने में नोकिया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेकर होता था। पर हमने हमारी गेम खत्म होने के 6 महीने पहले, जिसपे हम 2 साल से काम कर रहे थे, एक अनाउंसमेंट की नोकिया के उस जमाने के सीईओ ने कि हम सिम्बियन ओएस से हट रहे हैं। और तभी नोकिया के जो फोन थे, नोकिया की जो कंपनी थी, वो टूटने लगी। और भारत में जो उस जमाने में नोकिया के लोग थे, कुछ जिनका काम था कि उनके ऐप स्टोर में एप्स डिसाइड करें, वो उस सोच के बन गए कि जैसे कोई कंज्यूमर गुड्स कंपनी 100 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ देती है, उस प्रकार हम कंपनियां ढूंढेंगे जो हमें 20-20 ऐप डाल सकें हमारे स्टोर में एक झटके से। तो लोग जो ऐप डालते थे तब नोकिया स्टोर पे, तो ऐसी ऐप डालने लगे लोग कि अपने गोल्स मीट करें कि लो 20 ऐप डाल दी, लो 10 ऐप डाल दी। हम जैसी कंपनी जो एक प्रोडक्ट पे हमने 2.5 साल काम किया है, शायद 3 साल काम किया है, तो हमारे लिए क्या जगह बचेगी उस जगह में जहां पे लोग 2-2 3-3 महीनों में 20-20 ऐप डाल रहे हैं। तो उस पॉइंट पे हमें लगा कि क्या हमारी मेहनत 2-2.5 साल की 3 साल की मेहनत व्यर्थ गई। और उसके लिए ये मतलब सोल्यूशन हमें ये मिला कि हम ढूंढते रहे, लोगों से बात करते रहे। और ऐसे लोग मिले कि कोई थे जर्नलिस्ट जो मुझसे 12 साल छोटे थे उम्र में। तो इन्होंने कहा कि आप बड़े भाई हो हमारे, और आपको इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है, और आप ये दिशाएं क्यों नहीं ट्राई करते, आपने ट्राई की क्या? तो मैंने कई और दिशाएं ट्राई की। और फाइनली एक मेरे कॉलेज का मेरा सीनियर था, जो कि बहुत टेक्निकल और टेक्नोलॉजी में अच्छा बंदा था। उसने मेरी बात कराई अपने कंपनी के को फाउंडर से, जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ही नहीं थे बल्कि उन्होंने प्रोडक्ट बनाए थे, और ऐसे प्रोडक्ट बनाए थे जो आज तक दिखते हैं विंडोज के हिस्से के रूप में। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये ऐसा चाह रहे हैं तो तुम कुछ ऐसी चीजें बनाओ जिसके मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स आए। जब नोकिया देखेगी कि तुम कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो वो खुद आके तुमसे बात करेंगे, खुद तुम्हें मौके देंगे। और इस प्रकार मतलब भूल भुलैया और अंधेरे में 1 साल गुजारने के बाद, अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद, हमें मतलब रोशनी के कुछ सुराग मिले, जिसके द्वारा हम उस पॉइंट पे आए जहाँ पे अचानक हमारे बैंक में बहुत सारे पैसे आने लगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गए और एडवर्टाइजमेंट दिखा के बहुत सारे पैसे आने लगे। तो ये एक उदाहरण है।
ऐसी सिचुएशन का जहाँ पे हमें लगा कि हम गिव अप करने वाले हैं, पर मतलब ढूंढ के कुछ भगवान की मर्जी से हमारे पास आया मौका। Okay, thank you. I mean, it's nice that you did stay on the course. I guess you had people sort of motivating you on the side too, so that's amazing. One student is asking, sir, how can we know what the mind map will be after exploring our idea slash thought with you? So I guess he's trying to understand perhaps the whole ideation methodology. So Okay. anything there? Yeah, I'll share. See, when somebody is trying to communicate something in a book, the idea of a mind map, or how do you put things together as a process or a sequence of things, is important. But when you are on the ground, you are actually doing things. The question is, what do you want to do and how are you going to do it? Like for example, if there is a market you want to go to so that you can eat some food item that you love, you will even go 10 kilometers for that. On the other hand, if there is something which you are not sure about, which you don't care about, you would not do much for it unless there is either an immediate reward or unless there's a pressing need for you to do that there and then. So I think it's very important to understand and ask yourself that what are you good at, what do you want to do, and what is it that there is an opportunity for. Like the founders of Zomato, when they were working in a consulting firm, they would get the menus of all the nearby takeaway restaurants. They would scan them and put it on their personal computer. And at lunchtime, people who were ordering food from outside would open that shared folder on this guy's computer. They would look at the menus that this guy had scanned, and they would use that to get the numbers and the menu items and the prices. And ultimately, this became Zomato. And it comes down to what is your passion, what is your interest, and where do you see an opportunity. No such thing as a mind map here. Okay. I think one last question actually on has become very big. So any pointers on how एक छोटा startup जब वो शुरू कर रहा है, how they can how should they go about marketing their products or services? Can you repeat the question? In the beginning, you said XYZ has become very big. I didn't hear that point properly. That was not No, audible. I said, no, I was saying that most startups, especially when they're very small, they struggle with getting new orders, new customers. How do you, what kind of a marketing strategy should one have? How should you expand in terms of expanding your customer base, how you sort of brand yourself? How should young startups think about it? I think the most important thing is to be willing to talk about what you are doing and being willing to go into and have conversations about it. A lot of people who are trying to start something, they make themselves busy as if they are the officer of some big company and they say, I don't have time for this, this, and this. But until you have conversations with potential customers, and not just one or two or three, but a diverse set of potential customers, unless you have people you can go and talk to, people you can bounce ideas off, people whom you are willing to listen to, you cannot have a conversation. To give you an example, I was once standing at some hangout spot, and one guy came and asked me, we were talking about technology, and one guy who was not very well dressed came and said कि आप website भी बनाते हो? मैंने कहा हाँ. He said कितने लगेंगे पैसे? I said इतने भी लग सकते हैं, इतने भी लग सकते हैं, इतने भी लग सकते हैं. I said आप बताइए काम क्या है? तो उसने कहा, he said कि उन्होंने कहा कि मेरे किसी रिश्तेदार या जानकार या पड़ोसी की कंपनी है जो एक आइटम ये मैन्युफैक्चर करती है फैक्ट्री, तो इनकी वेबसाइट बनाई थी, कई चीजें चेंज हो गई हैं, पर वो वेबसाइट वाली कंपनी इनकी हेल्प नहीं कर रही, तो आप कितने पैसे लोगे? सो मैंने कहा कि भाई साहब ये हम काम आपके लिए फ्री में कर देंगे, मिलवा दो आप हमसे, और हम आप उनको समझा देंगे कि हम कितने पैसे में क्या काम कर सकते हैं. तो अगर उनको हमारी जरूरत हो और लगे कि हम उनका फायदा है हमसे कुछ काम कराने में, तो हम उनका काम कर देंगे. नहीं तो वी आर हैप्पी टू टॉक, और ये छोटा सा काम हम ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा कोई काम नहीं है.
और कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप अपनी पुरानी वेबसाइट फेंक दो उस चीज के लिए. तो that gave us a channel of communication and a link to somebody, and we did that work. We did it well. We got much more work from that, and we made a fair amount of money, and we also got references. But if we had thought कि ये बंदा जो हमसे बात कर रहा है, one guy who was talking to me, who was not in my company, who was just a friend, he said कि यार ये मतलब he said कि what is this guy, ये बंदा जो इतना गरीब लग रहा है और ऐसा लगता है कि मजदूरी का काम करता है, इससे तुझे बात करके क्या फायदा होगा. बट मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा. मैं बस ये कहता हूं कि अगर कोई आके हमसे बात कर रहा है तो बात करने से बात बनती है, और अगर हम लोगों की सहायता करने की कोशिश करें, उनका भरोसा कमाने की कोशिश करें, तो कभी ना कभी तो कमाई भी होगी. काफी लोग जो होते हैं वो पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, और अगर आपको सिर्फ इतनी सी चीज चाहिए तो हम नहीं दे सकते. इस चीज को मैं एक बार अगले 1.5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, इस जवाब को, कि जब मैं बेंगलोर में रहता था तो पता नहीं कहाँ से काफी लोगों को मेरा नंबर मिल गया. तो फोन आते थे कि आपको न्यूज़पेपर चाहिए, आपका क्या एड्रेस है, और आपको कौन सा न्यूज़पेपर चाहिए. तो मैं कहता था कि भाई मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, और मुझे सिर्फ संडे वाले दिन चाहिए. और वो कहते थे अच्छा आपको सातों दिन नहीं चाहिए. मैं कहता था नहीं. और फिर उसके बाद कोई न्यूज़पेपर डिलीवर नहीं करता था. वो सोचते थे कि अगर ये इंसान हफ्ते में सिर्फ एक दिन का न्यूज़पेपर ऑर्डर कर रहा है तो हमें क्या मुनाफा. पर मैं कहूंगा कि अगर कोई नया ओपनिंग, नई लीड, नया कस्टमर आ रहा है, तो अगर तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अगर उसको बेचोगे जो तुम बेच रहे हो उस तरीके से जो वो बेचना चाहता है, तो वो तुमसे और भी काफी कुछ खरीद सकता है, आपके साथ और भी काफी कुछ डीलिंग्स कर सकता है, और काफी और आपके साथ कन्वर्सेशंस हो सकती हैं जिनसे आपको फायदा हो सकता है. सो इस स्टार्टअप के लिए जो कि नए कस्टमर ढूंढ रही है, मैं बस ये कहूंगा दैट फोकस ऑन पीपल, focus on trying to solve people's problems, and you will discover whether that market is right or wrong for you, and how big or small that market really is, instead of trying to prejudge that market and think that ये हमारे लिए बहुत ज्यादा छोटा है या ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है. वो काम एक एंटरप्रेन्योर को शोभा नहीं देते मेरी राय में. Okay, thank you. That was nice. That no problem is small, and I sort of like the fact that you're saying that start small and it can become big over time. And I think that's a very important lesson. Sometimes we walk away from opportunities thinking कि ये तो बहुत ही छोटी opportunity है. So I think that's a really interesting, thing that you've pointed out, and it's an important lesson for our students. So thank you very much. Yeah, I'm listening. No, please go ahead. Okay, so if there is one more question you'd like to ask me, I'm happy to answer. And even if there are no questions, all of you who are watching are most welcome to search me on Google. Nalin Savara is my name, NALIN SAVARA. You can follow me on Twitter, twitter.com/NALDOTSAV. And you can also add me on LinkedIn, linkedin.com/in/NSNSNS. And on Instagram, I'm instagram.com/NalinSav. So even though there are times when I don't post much, I do try to answer every question, or at least respond, even if I say that, sorry, I cannot go into that much detail. So if you are reaching out to me, I would do my level best to try to get back to you. And if there's a channel of communication like email or something where you are writing to me and I don't seem to be responding, it's not that I'm avoiding you or running away, but that maybe the message is not reaching me, because there are certain email IDs where I have over 2 million unread email messages. So, I mean, that's all I'll say. Ambika, you can ask one final question if you can, just so that I wrap it up on the note that I'm actually doing my best to answer every question that comes. There are very few product-based Indian companies in software. Why do you think that's the case in India? I think in every domain there are different reasons why there are a product company or why there are not a product company. So it really depends on the specific domain within which we are talking of. So in financial accounting, for example, you have a company called Tally and you have a company called Busy, which have literally million plus paying customers each. There are other spaces where Indians are hesitant to spend on a product
But when they are in communication with a person or a team of people and they think the team of people is good, they will happily pay for the service. So it's like very few of you people will have bought an app over the app store. But if you are getting your mobile repaired, you will pay. If you are doing something else, you will pay. So a lot of it depends on the market's own trends and buying patterns as much as it is about the passion for product. Of course, it is important for all of us to try to build product companies, but I'm just sharing an observation about the Indian market. Okay, thank you. Thank you. I think that helps. Thank you very much. With that, we'd like to really thank you for your time today, Nalin. All the details you shared regarding your social media, etc., I will share with the students. And if they have questions, वो आपको email कर लेंगे या फिर not email but LinkedIn पे message drop कर देंगे या फिर let's see what social media channel they use. नहीं, But आप thank you so much. Twitter, Instagram, LinkedIn Okay, कुछ भी कर सकते हैं. मैं ठीक है. कोशिश करूंगा कि हर मैसेज को आंसर करूं. Thank you. Okay, thank you so much, Mr. Nalin. Have a nice day. Thank you for your time. Thank you. Okay. Okay, so please welcome Ms. Aradhana. She's a Senior Vice President of Sustainability and ESG at Lemon Tree Hotel. Aradhana is an alum of Lady Shriram College in IIM Ahmedabad. She has about 29 years of experience in sales, marketing, corporate communication, and sustainability across many well-known organizations such as Hindustan Unilever, Taj Group of Hotels, and now, of course, Lemon Tree. She's a TEDx speaker, and her work spans sustainability initiatives and people inclusion and diversity. In fact, under her leadership, Lemon Tree has made tremendous inroads in hiring employees with disabilities over the past 15 years. 14% of their workforce is currently of employees that have special needs, such as Down syndrome, autism, speech and hearing impaired, and they have made efforts to integrate them with the company. And the goal is to take this number to 30% over the next 2 to 3 years. So, on that note, we welcome Aradhana. I Hi. will go ahead and share my screen and the presentation. And so, welcome, Aradhana. Hi. Those videos are open? Yes. Okay. You can start with the slide. Okay. Okay, We are great. ready. Yeah. Thanks a lot, Antika, for having me here on this session. I know that you have a large number of your students online right now, and I think you said you also have us on YouTube. So welcome to everybody. Sabko namaskar. The next slide, please. So those of you who don't know, Lemon Tree is one of India's fastest growing chain in the upscale, mid-scale and economy space. Today, we have 87 hotels in 53 cities, and that's a total of 8,350 rooms. And we have about 6,500 employees. We are the third largest hotel chain by owned rooms. So अगर आप देखिए हमारे 7 brands हैं. Aurika Hotels जो upscale है, Lemon Tree Premier 4-star plus है, Lemon Tree Hotels 4-star, Red Fox Hotels 3-star, और हमने Keys Hotels का portfolio acquire किया था 2018 में. So we have Keys Prima, Keys Select and Keys Light, 4-star plus, 4-star and 3-star. So of these 7 brands, 6 of them are in the 3-star and 4-star space, और सिर्फ Aurika उसके ऊपर है upscale space में. So that's a brief background on the company. Let's talk about sustainability next. तो आपको शायद मालूम हो या शायद ना मालूम हो, sustainability में 3 पहलू होते हैं. Environment, social and governance. Environment के नीचे the kind of topics are about energy or renewable energy, water and waste management. Social में हम देखते हैं company का क्या relationship है अपने employees के साथ, customers के साथ, suppliers के साथ, government and community. और governance में main बात होती है how does the company run, what is the way the company is running, what are the ethics and values, what is happening at the board level, how is the board managing the company, what are the company's policies and processes, and of course remuneration to the board and leadership team. ये सारी बातें governance के नीचे आती हैं. So किसी भी company को अपने business operations में environment, social और governance, E, S और G तीनों aspects को अपने business model में, अपने company के चलाने के तरीके में include करना चाहिए.
Just to give you a few examples of what Lemon Tree is doing, we are trying to source renewable energy across the group. Our target for FY26, that means आज से 4 साल में हमारा target है 50% of our energy should be renewable. Renewable का मतलब होता है जिससे planet को कोई harm नहीं आता, which means solar energy से लेते हैं power को, wind energy से लेते हैं power को, it could be also hydro or water. So these are all known as renewable energy. That means they do not harm the planet. We are doing some very interesting initiatives with our guests for water saving. तो पानी बचाने के लिए 2 बहुत अच्छे प्रोग्राम है हमारे होटल्स में. एक तो लिनन, मतलब शीट्स एंड टॉवल्स इन द रूम. ये गेस्ट के रहने के 3rd डे पे चेंज होते हैं. मतलब जो गेस्ट केवल 1 दिन या 2 दिन रहेगा, उसके रूम का शीट चेंज नहीं करेंगे उस गेस्ट के लिए. जब गेस्ट चेकआउट हो जाएगा ऑब्वियसली चेंज करेंगे. मतलब ये है उस गेस्ट के लिए नहीं. अगर वो 3 दिन से ज्यादा रहेंगे then we'll change it. And also in our restaurants we only serve half a glass of drinking water because we feel that when we serve the full glass, बहुत लोग पानी वेस्ट कर देते हैं. तो आधे ग्लास को सर्व करने से हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं. और इसका एक छोटा सा टेंट कार्ड हमने बना के टेबल्स पे रखा हुआ है, तो गेस्ट को समझ आएगा. Also we hire people with disability. हमारे बहुत सारे employees हैं जो विकलांग हैं, उसके बारे में हम आगे बताएंगे. We have put in practices that are sustainable even in our agreements with our suppliers. जिन कंपनी से हम products खरीदते हैं, जैसे कि food products, soaps, shampoos, towels, linen, all of that, हमने उन agreements में कुछ important sustainable practices डाले हैं उसके अंदर. Also engagement with the community. हम लोग अपना CSR contribution देते हैं. हम कुछ volunteerism का काम करवाते हैं हमारे होटल से वगैरह. Then the definition of policies for ESG. We have been very clear what is our stand on human rights, energy management, water management, waste management, and we have taken targets to get to zero carbon and zero plastic. ये सब हमारे website पे available है in our ESG reports. मैं थोड़ा आगे दिखाऊंगी. Next slide. So going forward, where are we at today? I want to show 2 videos here first. These are not Lemon Tree videos. Next slide. These are 2 interesting videos. One is about inventions and the other I'll tell you when it comes. You can put this on. I'll ask you to stop at a certain point. You won't see the whole video. These are examples of innovations that are taking place around the world. So you can see the kind of ideas people have related to energy, related to water, related to plastic. So I just want to show you some samples basically. ये पानी पीने का एक गोला है जो जिसमें कि प्लास्टिक बॉटल की जरूरत नहीं पड़ती. सीवीड से बनाते हैं. ये एक व्हील और गार्बेज सिस्टम है जो रिवर्स में से सारा गंद निकाल सकता है, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, पैकेट्स वगैरह. जो आपको पता है हमारे इंडिया में तो बहुत सारे रिवर्स में ये प्रॉब्लम है. और ये एग्जांपल अमेरिका का है. ये शैम्पू आता है छोटे छोटे पॉड्स में जिसमें यू डोंट नीड अ प्लास्टिक बॉटल. एंड अ वेरी यंग पर्सन इन्वेंटेड इट. दिस इज अ वाटर टर्बाइन जिसमें से किसी रिवर में डाल के इसको एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस इज आल्सो रिन्यूएबल एनर्जी. This is a swimming pool that is made inside a shipping container and it's mobile. इसको जगह जगह ले जा सकते हैं. पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम सब लगाया हुआ है इन्होंने. ये भी कहीं विदेश में है. This is a sea bin. इसको ओशन में डाल सकते हैं और बहुत सारा कचरा और प्लास्टिक इसमें पकड़ के डिस्कार्ड कर सकते हैं.
ताकि फिश लाइफ और मरीन लाइफ को कोई मुश्किल ना हो। और वाटर तो निकल के वापस जाता है ओशन में। ये स्पून्स एंड फोर्क्स हैं जो खा सकते हैं, तो आपको प्लास्टिक की जरूरत नहीं है। ये इंडिया में इन्वेंट हुआ है, राइस, व्हीट एंड मिलेट से बना हुआ है ये। तो खाना खाया और स्पून भी खा गए। ये एक ब्रूअरी है जिसने ये बनाया है मटेरियल विच इज एडिबल बाय द फिश। तो अगर ये ओशन में पहुंच भी गया तो किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा ये। ये भी एक पोर्टेबल टर्बाइन है जो आपको पावर दे सकता है 24 आवर्स अ डे, एक छोटे घर के लिए। जैसे ये घर। You can stop the video here. I just wanted to show you some ideas. इसमें और भी हैं, बाद में वीडियो देख सकते हैं। We can go back to the second video, please. The bin boy, Hindustan Unilever. This is about waste. इसको आप समझ जाएंगे 1 मिनट में, और ये हिंदी में है, तो it's very easy to relate to. नहीं, हाँ यही है। भाभी, देखो आपके कचरे में क्या है। अपू, कचरे के डिब्बे में क्या कर रहा है? उठ, उठ। अपू, मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। अपू के पापा, अरे जल्दी आओ, देखो क्या कर रहा है। क्या हुआ? देखो। अपू, क्या कर रहा है बेटा अंदर? गंदा है, आजा बाहर आजा। आजा, आजा। गुप्ता जी, बेटा स्ट्राइक पे बैठा है क्या? हाँ भाई, इसको क्या हो गया? अरे देखो बेटा, कचरे के डिब्बे में बैठा। देखो बेटा, कचरे के डिब्बे में बैठा। ओ बेटा, भैया, क्या हुआ? आजा वापस। बेटा, देखो बेटा, कचरे के डिब्बे में बैठा। सारा शहर जानना चाहता है कि आखिर ये बच्चा इस कचरे के डब्बे से क्यों नहीं निकलेगा। क्या ये हमें बताएगा? बोल तो अब तू क्यों बेटा, कचरे के डिब्बे में बैठा। अपू बेटा, किसी और को नहीं, अपनी नानी को तो बताएगा ना। इन्हें कितनी बार बताया नानी, मेरी बात सुनते ही नहीं, कि अगर गीला कचरा और सूखा कचरा एक साथ फेंकेंगे तो मेरा फ्यूचर भी तो कचरे में जाएगा। So, ये कैंपेन हिंदुस्तान यूनिलीवर ने करीब 2 महीने पहले निकाला था। आप लोगों ने शायद टीवी पे देखा होगा इसको। The idea is that if we want to manage our waste properly, the first thing we have to do is in our houses and therefore even in our hotels and offices, we have to segregate the waste. जो गीला है वो अलग, जो प्लास्टिक या पेपर या कार्डबोर्ड है जो रिसाइकल हो सकता है वो अलग। तो ये एक बहुत अच्छा वीडियो है उस बात को समझाने के लिए। नेक्स्ट। अभी लेमन ट्री में थोड़ा बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक तो एनर्जी मैनेजमेंट, मतलब हम लोग अलग अलग टाइप के बल्ब्स, अलग टाइप के इक्विपमेंट, एसी, फ्रिज वगैरह डालते हैं जिससे कि एनर्जी सेविंग होती है। दे कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ पावर ऑन अ डेली बेसिस। सो वी हैव बीन एबल टू अपग्रेड ऑल आवर 87 hotels with new equipment and new bulbs. So for instance, we are now using LED bulbs everywhere. So power saving is many times over versus a traditional bulb. Renewable energy मैंने बताया था, हम लोग का टारगेट है 50% of our energy should be renewable by FY26. पिछले साल हमने खत्म किया था with 15.25% और अभी इस साल का टारगेट है about 28%. फिर क्लाइमेट चेंज और रिडक्शन ऑफ आवर ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस को का दूसरा नाम है कार्बन फुटप्रिंट। आपने ये सुना होगा। इसका सिंपल मीनिंग होता है जो भी हम एक्टिविटी करते हैं कंपनी में, होटल चलाते हैं, एसी चलाते हैं,
खाना आता है हमारे होटल में, वेस्ट जाता है हमारे होटल से, प्लास्टिक यूज होता है, ये सारे रीजंस के कारण एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो सकता है, दैट इज नोन एज कार्बन फुटप्रिंट। तो हमको ऐसे कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे कि ये ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएं, ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो इसके लिए हम ग्रीन बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है जो भी फीचर्स होते हैं, मटेरियल्स जो यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, पावर यूसेज, वाटर रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, हम ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं जो सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें। वी ऑल्सो अडॉप्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, ये हमने बताया था। हमारा टारगेट है, अभी हमने शुरू नहीं किया है ये, हम आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे जो हमारे होटल के कार्स होते हैं, बजाय पेट्रोल या डीजल या सीएनजी के बजाय हम चेंज करके इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करेंगे बाय FY31, दैट्स अनदर 7-8 years स्टिल। तो ये हमारा टारगेट है। वाटर मैनेजमेंट में भी हम वाटर यूसेज को रिड्यूस करते हैं। तो जैसे शावर या टैप या कोई चीज होती है, उसमें एक फिटिंग डाल सकते हैं, उसका नाम है एरेटर। उससे वाटर क्वांटिटी जो बाहर आती है टैप से, उसको ऑलमोस्ट हाफ किया जा सकता है, एंड यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ इट। सो उससे जो गेस्ट होता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर वाटर यूसेज बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट, also waste management, you already talked about it. Then green building certification, इंडिया में एक बॉडी है, इसका नाम है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, IGBC। ये लोग होटल्स को सर्टिफाई करते हैं। तो हमारा गोल है कि सारे ओन्ड होटल्स, हमारे 87 होटल्स के अंदर 40 होटल्स ओन्ड हैं और बाकी 47 मैनेज्ड हैं। तो सारे ओन्ड होटल्स के अंदर हम इस सर्टिफिकेशन को करवा रहे हैं इस वक्त, अगले 2-3 साल में हो जाएगा। We are trying to target the gold certification. अगर आप ये ग्रिड देखोगे, इसका मतलब है नेशनल एक्सीलेंस, यहाँ उसका स्कोर आता है 70 to 79। कुछ होटल्स हो सकते हैं जहां हम उस लेवल पे नहीं है, तो फिर सिल्वर कराएंगे उस टाइम पे। दैट्स द प्लान। नेक्स्ट, तो ये 2 और वीडियोस हैं, एक का नाम है सीट बेल्ट क्रू और एक का नाम है रेनबो पेरेंट्स। दिस इज अबाउट डिवर्सिटी, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को अपनी कंपनी में लेके आना। अभी पहले देखो ये सीट बेल्ट क्रू क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। Transgenders, better known as Hijras in India, are not like their counterparts elsewhere in the world. Indians consider them sacred, touched by God. Their blessings are auspicious and generally accompanied by their signature clapping. They're often invited to bless newborns and newlyweds. In fact, most Hijras make their living by exchanging blessings for cash at traffic signals. With the help of Hijras, we wanted to educate reckless motorists about a very basic safety procedure they constantly ignored. कृपया ध्यान दीजिए। अटेंशन प्लीज। अगर पायलट के जैसे गाड़ी चला रहे हो तो पायलट के जैसा सेफ्टी भी चाहिए। तेरी गाड़ी में ऑक्सीजन मास्क नहीं है, कुर्सी के नीचे लाइफ जैकेट नहीं है, मगर सीट बेल्ट तो है। तो पहना क्यों नहीं रे? मैं सिखा दूं क्या? इधर से बेल्ट ले लो और अपने बॉडी के सामने से खींचो और जांघों के बाजू में ऐसा फिट कर लो। जब तक क्लिक नहीं सुनाई दे, इतना गोरा गोरा मुंह एक्सीडेंट के बाद अच्छा नहीं लगेगा। ए नॉटी गर्ल, तेरे बॉयफ्रेंड को बोल दे सीट बेल्ट ऐसा पहनने का। ए चिकना माल, वीडियो मत ले, सीट बेल्ट लगा। सीट बेल्ट पहनो, दुआ ले लो। सो हिजड़ा को लेके, ट्रांसजेंडर को लेके इन्होंने ये बहुत सुंदर फिल्म बनाई कि भाई अगर सीट बेल्ट पहननी है तो आप अपने आप को मतलब बचा सकते हैं एक्सीडेंट में। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से उनके क्लैप को लेके इन लोगों ने ये वीडियो बनाया था। सो द पर्पस ऑफ शोइंग यू द वीडियो इज कि हम कौन सा भी काम का बात करें, चाहे होटल कंपनी है, चाहे कॉलेज है आपके जैसा, चाहे सड़क पे जाने वाला कार ड्राइवर है, कोई भी है,
people who are different, they can be included. जो लोग अलग हैं उनको हम साथ लेके चल सकते हैं, उनको अलग रखने की जरूरत नहीं है. Same in the next video, which is called Rainbow Parents. इसको देखिएगा. It's not showing the right video. आज खाने में क्या बना रही हो? दाल चावल बना रही हूँ. सुनी, एक ठो चश्मा लेना पड़ जाएगा. दिल पे नहीं कर रहा भाई. बटवा क्या कर रहा है अंदर पढ़ाई कर रहा होगा. पापा मैं गया हूँ. तो पापा मुझे लड़के पसंद है. हाँ तो हमको लड़कियां यानी कि तुम्हारी मम्मी पसंद है. हम तुमको कभी कहे नहीं ना. हम किसको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, इस बात पे तुम हमसे प्यार करना छोड़ दोगे तो बेटा तुम के हो. तुम्हें लड़के पसंद है, इस बात पे हम तुमसे प्यार करना कैसे छोड़ दे बेटा. चल मम्मी की मदद कर, एक साथ खाना खाते अपनों से बात करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, और अपनों से प्यार करना तो बिल्कुल नहीं. जैसे आपने देखा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर किसी की चॉइस अलग है, उसके वो इफ दे आर अ मेंबर ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी, उनको उतना ही हक है फैमिली से प्यार लेने को, नॉर्मल लाइफ जीने को. तो वो ही दिखा रहे थे इस वीडियो में. सो द पर्पस वाज टू शो अस दैट लोग अलग हो सकते हैं, लोग डिफरेंट हो सकते हैं, और हमें फिर भी एक्सेप्ट करना चाहिए. दिस इज द थिंकिंग. अब हम बताएंगे हम लेमन ट्री में क्या करते हैं. नेक्स्ट. तो हम लोग पीपल विद डिसेबिलिटी को बहुत टाइम से हायर कर रहे हैं, 2007 से, तो करीब 15-16 साल हो चुके. इस वक्त 13 या 14% इस सेगमेंट से आते हैं, अपॉर्चुनिटी डिप्राइव्ड इंडियंस, ODI, जिसमें हमारे एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी होते हैं, जैसे कि स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड या डेफ, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकल हैंडीकैप, लो विजन, डाउन सिंड्रोम, स्लो लर्नर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड ऑटिज्म. तो ये हमारे टीम मेंबर्स हैं. दे आर पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफिस, दे आर पार्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज, दे आर पार्ट ऑफ हाउसकीपिंग, फाइनेंस. अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारे एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी आते हैं. There's another segment which is employees from economically and socially marginalized backgrounds. इसमें widows, orphan children, transgender, जैसे हमने वो वीडियो देखा था,
एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स, हम अलग अलग ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देके अपने कंपनी में जॉब देते हैं। हमारा टारगेट है कि ये दिस 13 or 14% should become 30% by FY26, which means another 3-4 years. ऑल्सो हम फोकस करते हैं कि हमारा women to men रेशियो हमारे कंपनी में थोड़ा बढ़ना चाहिए। इस वक्त वो करीब 10% चल रहा है। हमारा टारगेट फॉर FY26 इज 15%। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज की हेल्थ और वेलबींग के बहुत प्रोग्राम्स है कंपनी में। वी आर ऑल्सो कमिटेड टू टू ह्यूमन राइट्स, विच मीन्स नो हायरिंग ऑफ चिल्ड्रन और फोर्स लेबर। और हम बिल्कुल जीरो टॉलरेट करेंगे अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन होगा हमारे कंपनी में या हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स में या कहीं पे भी। हम लोगों ने अपनी सोर्सिंग पॉलिसी, मतलब जो अग्रीमेंट्स है हमारे वेंडर्स और सप्लायर्स के साथ, उसको हमने रिस्पॉन्सिबल बनाया है। मतलब हमने उसमें भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज डाले हैं, एनर्जी और वाटर सेविंग के बारे में डाला है, ताकि हमारे सप्लायर्स भी हमारी तरह ये अच्छे पॉलिसीज फॉलो कर सकते हैं। फिर हमने ह्यूमन रिसोर्सेज और लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का मतलब है ट्रेनिंग, तो यहाँ पे भी हमने सस्टेनेबिलिटी और ESG के टारगेट्स डाले हैं लोगों के की रिजल्ट एरियाज में, जो हमारे लीडर्स हैं कंपनी के, होटल मैनेजर्स वगैरह। इससे क्या होता है, सारी कंपनी एक ही सोच रखती है। एवरीबडी गोज फॉर दैट टारगेट, विच इज दैट we must get more renewable energy, more employees with disability, use less water। ये सारे टारगेट्स फिर हम लोगों के परफॉर्मेंस रिव्यू में आ जाते हैं, सबके जो मैनेजर्स और लीडर्स हैं। फिर हमने टैलेंट मैनेजमेंट और रिटेंशन में बहुत काम किया है, और ट्रेनिंग जैसे बिहेवियरल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह। कम्युनिटी के साथ हम लोग अपने CSR बजट के जरिए काम करते हैं, और जो हमारे NGO पार्टनर्स हैं जिससे हम एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी लेते हैं, हम उनके साथ भी काम करते हैं कम्युनिटी में। नेक्स्ट, ओके, दिस इज अ वीडियो, इट्स इन इंग्लिश। ये एक गाना है एक्चुअली, और आप दिखाने से पहले हम समझा देते हैं। ये एक एप्पल कंपनी का AV है। इसमें वो अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं, सिरी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह वो अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए भी डिजाइन किया गया है, ताकि अलग डिसेबिलिटी वाले लोग, जिनका बहुत डिफिकल्ट डिसेबिलिटी होता है, वो भी रोजमर्रा के काम कर सकते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, पियानो बजाना, फोटोग्राफ लेना, किसी जगह में जाके स्टेज में एंट्री करना। आप देखेंगे अभी। और ये जो हमने नाम यहाँ लिखे हैं स्लाइड पे, दिस सॉन्ग इज कॉल्ड आई एम द ग्रेटेस्ट। It's been sung by the Marlia Choir, which is of Aboriginals and Indigenous people. Aboriginal और Indigenous का मतलब है जैसे इंडिया में हमारे ट्राइब्स और ट्राइबल लोग होते हैं, इसी तरह दुनिया के दूसरे हिस्से में उनको Aboriginal और Indigenous बोलते हैं। एक दूसरे आर्टिस्ट हैं इसमें जिसका नाम है कोला बॉय। उनको 4 किस्म का फिजिकल डिसेबिलिटी है। उनके पीठ में, उनके स्पाइन में ये प्रॉब्लम है, स्पाइना बिफिडा, और उनके शोल्डर और नेक और बैक में ये अलग प्रॉब्लम्स है, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस। और उनको क्लब फुट भी है जो पैरों में होता है। इसका मतलब ये है कि जब उनके पास ये बहुत डिफिकल्ट 4 डिसेबिलिटी है, उनका हिलना डुलना, उनका मूवमेंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट आप देखना वो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। और एक और इसमें आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है मैथ्यू विटिकर। ही इज अ ब्लैक मैन, अफ्रीकन मैन। ही इज ब्लाइंड, तो वो पियानो बजाते हैं, पूरी तरह देख नहीं सकते वो। तो अगर ये लोग इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, तो कोई भी डिसेबिलिटी वाला आदमी या औरत आगे जाके जिंदगी में हिस्सा ले सकता है। हमें ये दिखाना है। तो ये वीडियो दिखाइए। So that message is very clear कि कुछ भी किसी को डिफिकल्टी हो, डिसेबिलिटी हो, वो एक्चुअली उनकी एबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही बात हम लेमन ट्री में बहुत मानते हैं, इसलिए हमें ये वीडियो बहुत पसंद आता है एप्पल कंपनी का। वेल, या द नेक्स्ट स्लाइड। तो कुछ रीजंस हैं जिस कारण हम एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी को अपने कंपनी में लेते हैं। These are basically business reasons and nation building reasons.
In business, we can look at it from the employee perspective and from the customer or the brand perspective. तो इसमें क्या होता है, अगर हम पीपल पे डिसेबिलिटी हायर करते हैं, जैसे हमने 2007 में शुरू किया था, हमने फिर टैलेंट पूल बड़ा कर दिया, which means normally we used to hire from होटल स्कूल, एविएशन स्कूल और रेगुलर कॉलेजेस से भी. फिर हमने ये दरवाजे खोले कि people with disability can also apply to us. So suddenly we were able to interview thousands and thousands of people more than before, and that made a very big difference to us. टीम में क्रिएटिविटी बढ़ती है. आपने देखा इस एप्पल वीडियो में, किसी के हाथ नहीं थे, बट उन्होंने अपने पैरों को किस तरह ट्रेन किया कि वो कोई भी काम आप और मुझसे बेटर कर सकते हैं एक्चुअली. सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन अ पर्सन हु हैज डिसेबिलिटी. जो सुन नहीं सकते उनको देखने का एबिलिटी ज्यादा होता है. जिसके हाथ नहीं होते वो पैर से कुछ कर सकता है, जिसके पैर नहीं होते उसके हाथ से कुछ कर सकता है. सो इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ फोकसिंग ऑन द क्रिएटिविटी एंड द एबिलिटीज. फिर हमारा एम्प्लॉई एंगेजमेंट, एक बहुत अच्छी बात हमने देखी है कि जो एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी हैं वो तो खुश हैं लेमन ट्री में आके, बट जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं जिनको डिसेबिलिटी नहीं है वो भी बहुत सेटिस्फाइड और बहुत प्राउड हैं, बिकॉज दे से वी आर इन अ कंपनी जहां पे हम इंक्लूड करते हैं लोगों को, अपॉर्चुनिटीज देते हैं. हमें ये बहुत अच्छा लगता है. हम उनको तो सिखाते ही हैं बट हम उनसे सीखते भी हैं. दैट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट दे आर आल्सो लर्निंग फ्रॉम द एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी. और एक बहुत इंपॉर्टेंट एचआर की वजह है रिड्यूस्ड अट्रिशन. अट्रिशन का मतलब है लोग जो आपकी कंपनी को छोड़ के रिजाइन करके जाते हैं. तो इस परसेंटेज में भी बहुत घटोती होती है व्हेन यू हैव एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी. तो हमारे कंपनी में नॉर्मली 50 to 60% अट्रिशन है. लोग छोड़ के जाते हैं कंपनी में, किसी और होटल कंपनी में चले जाते हैं. और जो हमारे एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी है उसमें ये नंबर कम है, करीब 25 to 30%. जो कस्टमर की तरफ से देखेंगे, द ब्रांड एंड कंपेटिटिव एडवांटेज, इसमें क्या होता है, जो कस्टमर ने पहले कभी लेमन ट्री ट्राई नहीं किया, जब वो सुनते हैं कि हम एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी लेते हैं तो वो ट्राई करने को रेडी हो जाते हैं. बिकम्स अ रीजन टू ट्राई. देन दे गेट गुड सर्विस एंड दे बिकम लॉयल, दे रिटर्न, वो वापस आते हैं. और कुछ लोग उसमें से हमारा ब्रांड बढ़ाते हैं, लोगों को बताते हैं दैट लेमन ट्री इज सो गुड, ग्रेट सर्विस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे हायर पीपल विद डिसेबिलिटी. तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के हमको रेकमेंड भी करते हैं. नेशन बिल्डिंग इज इजी. अगर सोसाइटी में लोग हैं डिसेबिलिटी के साथ तो क्यों ना हमारे कंपनी में भी हम अपॉर्चुनिटी देंगे उन लोगों को जिनको नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी, और उनको डिग्निटी और इंडिपेंडेंस से जीने का वजह मिलेगा. नेक्स्ट, जस्ट टू टेल यू द नंबर्स, इस वक्त हमारे 350 एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी हैं और 300 इकोनॉमिकली एंड सोशली मार्जिनलाइज्ड. करीब 10-12% है विद these two segments मिला के, और हमारा टारगेट है 30% में जाना by FY26. Next, this is the governance side of sustainability. जिस तरह से कंपनी चलाते हैं, तो हमारे बोर्ड में बहुत सारी कमिटीज हैं, नॉमिनेशन, रिम्यूनरेशन, रिस्क, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट एथिक्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ways of running the company होता है. So these are the things that these committees handle. And these are the important governance issues: ethics, code of conduct, anti-bribery, whistleblower, data privacy. These are very important in the corporate sector. Next. अच्छा, ये आप लोग बाद में देख सकते हैं, ये 2 लिंक्स दिए गए हैं हमारे इंटीग्रेटेड रिपोर्ट और ESG रिपोर्ट के, जिसमें हम लिखते हैं पूरा सस्टेनेबिलिटी के बारे में. और नीचे एक लास्ट वीडियो है जो हमारा सस्टेनेबिलिटी वीडियो है. इसको ऑन कर दीजिए. यू कैन सी ऑल द वर्क दैट वी आर डूइंग. जो मैंने अभी शब्दों में बताया आप वीडियो में देख सकते हैं. ये लेमन ट्री का वीडियो है.
स्ट्रीम खत्म हो गया ऑनलाइन। अरे यहाँ खत्म हो गया यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन। Why did you get? जब ये छोटा था तो मुझे पता नहीं था कि ऑटिज्म होता क्या है। जैसे जैसे ये बड़ा होता गया मेरी टेंशन बढ़ती गई। Person with autism has a difficulty in social and communication skills. If we see कि कितना अच्छे से वो डस्टिंग और सारा रूम बनाते हैं, बट वो रूम बनाने के पीछे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सी मेहनत की जाती है उनके साथ। जो भी एक टास्क है उसको SOP को भी बहुत छोटा छोटा ब्रेक करके और उसको सिखाना, एक मैनुअल, डिफरेंट मैनुअल बनाया जाता है जो कि नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाते। ये इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि मम्मा मैं हूँ आपके साथ, मैं करूँगा। आई थिंक सो कोई भी इतना परफेक्टली काम नहीं कर सकता जितना वो कर रहा है घर में। आज मैं गर्व फील करती हूँ कि ऐसा बच्चा मुझे मिला है। Okay, two questions for you. As grassroots level entrepreneurs, how can we make our businesses sustainable? So out of all the things that we were talking about, whether it's to do with energy, water, waste, inclusion, diversity, women and men ratio, whatever you may look at, no matter what the size of your company, whether you have 50 employees, 100 employees, 6,000 employees like we do, you can implement any or all of these initiatives. So start with inclusion. It's the easiest thing to do. So आपकी कंपनी में कितने men हैं और कितने women हैं देखिएगा। आपकी कंपनी में कोई person with disability है कि नहीं है, एक ले आइए, दो ले आइए और उनको सिखाइए काम कैसे करते हैं और वो करेंगे, बहुत बेहतर काम करेंगे। स्कूल ड्रॉप आउट्स को भी ला सकते हैं, उनको थोड़ा ट्रेनिंग देंगे सही तरीके से तो वो समझ जाएंगे। ऑर्फन्स, पीपल हु आर ट्रांसजेंडर, किसी के लिए भी अपना दरवाजा खोलिए और आप देखिए कि कैसे वो लोग आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। व्हेन यू लुक एट एनर्जी एंड वाटर, अगर आप किसी तरीके से 100 से 90 या 100 से 80 में चले जाइए एनर्जी कंजम्पशन के लिए, वो बहुत अच्छा है। वाटर वेस्ट मत कीजिए। व्हाट आर द प्रैक्टिसेस यू कैन फॉलो इन योर कंपनी दैट विल अलाउ यू टू सेव वाटर, whether it's the water in the tap or the drinking water or anything. तो आसान तो बहुत है मगर स्केल छोटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. What do you think are some of the reasons why a nation is still averse to this idea of inclusion? Asian. Inclusion. No, I know. What did you say in the beginning?
Nation, our country. Nation, I heard Asian. Okay, wow. So nation, yeah. तो हमारे country में ये एक social taboo है. Unfortunately, even though our country is so diverse, हमारे यहाँ 100 अलग-अलग किस्म की भाषा होती है, अलग किस्म के खाने होते हैं, culture होता है, dance, music. But इसके बावजूद हम लोग किसी तरह से एक taboo रखते हैं और disability की तरफ अपना mind open नहीं है. That's the way the culture is. So I think that if companies can come forward and start including people with disability, उसका effect धीरे धीरे society में जाएगा और society से family level पे जाएगा. ये सारी दिक्कत family से शुरू हो सकती है जहां a person with disability is kept behind closed doors. So I think the whole thing can be started by a set of companies also. The government, of course, naturally. But other than the government, even companies can just come forward. कहीं ना कहीं तो शुरू करना होगा ना, तो बस करेंगे. Okay. I mean, I guess company level, individual level, government level, all of this needs to come together. Yeah. What are some of the challenges you have faced in transforming the Lemon Tree Group to be more sustainable? हाँ, I'll take 2 examples because examples 100 होंगे, but इतना नहीं बोल सकते. तो 2 example लेते हैं. एक ले लेते हैं energy में. तो जो हम renewable energy की खोज में हैं कि हमारे hotels, we have 87 hotels in 53 cities. ये 53 cities इंडिया के अलग-अलग states में हैं. Renewable energy के जो laws होते हैं वो different है अलग states में. हरियाणा में different, Delhi different, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, UP. तो हमें क्या हो रहा है? Because our demand at our hotels, see, some hotels are 100 rooms, some hotels are 300 rooms, some hotels can be even 60-70 rooms. So हमारा demand for power is a little small. It is not the same as a factory. If Maruti has a huge factory, imagine the amount of power they use, right? So the government law has a restriction कि above a certain demand level only, they will give you the option of renewable energy. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हमारे छोटे डिमांड के साथ हम कैसे शिफ्ट करें रिन्यूएबल एनर्जी में. तो हमारी खोज जारी है. हम बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बात करते रहते हैं हर रोज. आज भी मेरी 1-1.5 घंटे की मीटिंग थी. तो यही होता है, we have to solve the problem. That's one topic. Second is in inclusion and diversity. When we hire people with disability, हमें चैलेंज ऐसा है कि जो फैमिलीज हैं उनको भी अपने साथ लेके चलना होता है, बिकॉज वो ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं. अगर कोई डेफ है, अगर कोई डाउन सिंड्रोम का गर्ल है सपोज, अगर कोई ऑटिस्टिक है, उनको डर लगता है कि बाहर दुनिया में कैसे जाएंगे, कैसे एक्सेप्ट होंगे. तो वो रेडी नहीं रहते कि वो लोग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए आ जाएं. उनको चाहिए, इच्छा है, बट उनको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं लगती. So as a company, we have to work with the parents and explain that we will take care. That's the whole idea. आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत है because government transport is not so easy. So they have to arrange private transport. But when we are doing hiring, हमको families को भी तैयार करना पड़ता है. केवल सिर्फ candidate की training की जरूरत नहीं है. Families को भी थोड़ा समझाना पड़ता है, advise करना पड़ता है, counsel करना पड़ता है. So that's an important effort that we all make. Wow, that's commendable. Actually, you're not just hiring one, you're hiring the entire family. Yeah. That's a big It's like shaadi ho rahi responsibility. hai, something like that. Yeah, that's right. That's how it is. Okay. All right. That's quite good. So I think we're sort of running out of time. I know you have other set of meetings, so I'm not going to hold you back. But thank you. And nice to interact with All you, right. Naren. Thank you. Thanks. All right. Have a good day. Bye-bye.